Welcome to the part 3 of number system. Today we are going to start with the topic real numbers and their decimal expansion. To understand this, we are going to perform 3 divisions. Number 1, 10 upon 3. 3 3s are 9, 10 minus 9, remainder 1. We will put a point in the quotient and a 0 down with the remainder. Again, 3 3s are 9, 10 minus 9, remainder 1. Now see that here in every step we are going to get remainder 1. Okay, because 3 3s are 9, 10 minus 9, 1, and this division process is never going to end. So ultimately we are going to get 10 upon 3 is equal to 3.333333 and so on till infinite times. Division number 2, 7 upon 8. So here as 7 is smaller than 8, we are going to put 0 point in the quotient and a 0 with 7, and then we begin with 8 8s are 64, remainder 70 minus 64 is 6. Then putting a 0, we will make 8 7s are 56, and then 60 minus 56 remainder 4, and then 8 5s are 40, and the remainder 40 minus 40 we got 0. Here the remainder we got 0, that means we will stop the division, and here 7 upon 8 we got 0.875. Division number 3, 1 upon 7. As here 1 is smaller than 7, we will put 0 point in the quotient and a 0 with 1, and then we start with 7 1s are 7, 10 minus 7 remainder 3, putting a 0, 7 4 are 28, 30 minus 28 remainder 2, putting a 0, 7 2s are 14, 20 minus 14 remainder 6, putting a 0, 7 8s are 56, 60 minus 56 remainder 4, putting a 0, 7 5s are 35, 40 minus 35 remainder 5, putting a 0, 7 7s are 49, 50 minus 49 remainder 1. We got the remainder 1 from where we started. Our initial dividend was 1, and again we got 1 in the remainder. What does it mean? It means that again this whole chain is going to repeat. Okay, so here what we got as 1 upon 7 is equal to 0.142857. After that again 142857. 142857 is constantly going to repeat. Now let us understand what we have made the conclusion by these 3 divisions. All these 3 numbers were in the form P upon Q, right? And both P and Q were integers where Q was not equal to 0. That means all these 3 numbers were rational numbers. Here we got 2 options for the decimal form of rational number. Option number 1, where our remainder became 0. Like for example, 7 upon 8, we got 0.875. Let's say we do 1 upon 2, we get 0.5. Let's say we do 1 upon 4, we get 0.25. This kind of division where remainder becomes 0 and after point only कुछ digits से repeat हो गए, ऐसे numbers के decimal expansion को हम कहते हैं terminating. Whereas on the other side हमने देखा division जहाँ पर remainder is never becoming 0, like the example of 10 upon 3 where we got 0.33333 and so on. Now जहाँ पर ये जो 3 है पॉइंट के बाद हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा, हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय राइटिंग 0.3 और 3 के ऊपर एक बार बना देंगे. ये बार इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट हमेशा हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा. सिमिलरली वी गॉट 1 upon 7 इज इक्वल टू 0.142857, 142857 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर भी हम 0.142857 के ऊपर 142,857 के ऊपर हम बार ड्रॉ कर देंगे, विच एक्सप्लेन्स दैट ये 142,857 हमेशा हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा. ऐसे डेसिमल वैल्यूज को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. यहाँ पर टर्मिनेटिंग था, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाना, डिवीजन स्टॉप हो जाता है बिकॉज रिमाइंडर 0 आ जाता है. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप ये डिवीजन चलता रहेगा बट रिकरिंग होता रहेगा, मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार हमेशा हमेशा के लिए रिपीट होते रहेंगे. ये दोनों रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म है. सी द वैल्यू ऑफ √2 और पाई. हियर पॉइंट के बाद डिजिट्स रैंडमली आ रहे हैं और वो डिजिट्स एक ऑर्डर में रीअकर नहीं हो रहे, रिपीट नहीं हो रहे. ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड दे आर इरेशनल. नाउ हम जब सम सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में स्पेशली, सो पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7 और 3.14, बट ये दोनों ही वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. इन रियलिटी पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7 और 3.14 because the value of pi is 3.1. as I showed you on the screen, it is non-terminating, non-recurring. but ये 3 point जो value है इसमें से सिर्फ 3.14 approximate value को हम pi में use करते हैं. So with this knowledge, let us start exercise 1.3. The first question is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has, where the first question is 36 upon 100. So to find a decimal form here we don't need to do any division process because there is 100 in the denominator with 2 zeros, so we will write it as 0.36. Here we know that this decimal expansion is terminating. The second question is 1 upon 11. Let us divide 1 by 11. So I'll put 0 point and 0 here, but still 10 is smaller than 11, so I'll put another 0 here and here 0. We get 11 9s are 99 and 100 minus 99 I'll get 1, and here I will stop the division because we have to stop the division in any one of the two cases.
फर्स्ट कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो यू हैव टू स्टॉप डिवीजन प्रोसेस, या फिर आपका रिमाइंडर जो आपका इनिशियल डिविडेंड था वही आ जाए, मतलब यहाँ पे इनिशियल डिविडेंड 1 था, रिमाइंडर भी 1 आ गया, सो वी हैव टू स्टॉप द डिवीजन बिकॉज फिर से यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा। दैट मीन्स के 1/11 वी गॉट 0.09 और वो 09 के ऊपर बार बना देंगे, दैट मीन्स 090909 फॉर एवर रिपीट होता रहेगा। एंड दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग recurring. The third question is 4 1/8. Here we will simplify this first. 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा रिजल्ट उसके साथ 1 को प्लस करेंगे। 8 4 ज़ा 32 and 32 plus 1 we get 33. So we get 33/8. So let us divide here 33 by 8. So here we get 8 4 ज़ा 32. 33 minus 32, 1 left. 0.0. 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर 2 0, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर 4 0, 8 5 ज़ा 40 and 40 minus 40 we get remainder 0. Here we will stop the division process. So here we got 33/8 is equals to 4.125 and this is called as terminating. एक चीज़ हम यहाँ पर अगर नोटिस करें कि हमें कब टर्मिनेटिंग मिल रहा है आंसर और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिल रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग कब मिल रहा है, आप डिनोमिनेटर में फोकस करो 100 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वी गेट 2 into 2 into 5 2 to the 4 4 5 the 20 25 is 100, राइट। सो 2 into 2 into 5 into 5 ये हमें 100 का फैक्टराइजेशन मिला। यहाँ पे जब हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिल रहा है वी सी दैट कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ 11 जो कि खुद एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे अगेन हमें टर्मिनेट मिला तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, 8 यानी क्या 2 into 2 into 2, मतलब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 and 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 होगा तो तब हमें डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग मिलेगा, ओके। और जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो जैसे कि यहाँ पे 11 है डिनोमिनेटर, सो वी विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऑप्शन, ओके। देखते हैं आगे के 3 सम्स में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज 3/13। देखो 3/13 है ना, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है इटसेल्फ, यहाँ पे 2 and 5 नहीं आने वाले फैक्टराइजेशन में, सो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। सो लेट अस डिवाइड 3/13, यहाँ पे विल पुट 0 पॉइंट here 0, 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर 4 0, 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर 1 0, your 10 is still smaller after putting a 0 also, so एक 0 और लगाएंगे एक्स्ट्रा तो यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे। 13 के टेबल में 13 6 78, 13 7 91, रिमाइंडर इज 9 0, 13 6 78, रिमाइंडर 12 0, 13 9 ज़ा 117, रिमाइंडर 3। सो यर हमारा रिमाइंडर 3 आ गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही रिमाइंडर वापस से आ गया। सो यर विल स्टॉप एंड यर वी कैन सी दैट इट इज 3/13 इज इक्वल्स टू 0.230769, above that will be a bar and it is non terminating रिकरिंग। सो जस्ट हम जो डिनोमिनेटर है उसे ऑब्जर्व करके वी कैन टेल दैट कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। चलो अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/11, अगेन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का केस होगा। 2 डिवाइड बाई 11, 0.0, 11 1 ज़ा 11, 9 लेफ्ट 0, 11 8 ज़ा 88, 2 लेफ्ट, ओके। अगेन हमारे पास 2 आ गया रिमाइंडर जो स्टार्टिंग में था, सो वी गेट 2/11 is equal to 0.18 and that is non-terminating recurring. And the last question is 329/400. So 329 divided by 400 करते हैं, okay. 400 से ये स्मॉलर नंबर है, so we'll put a 0 here and then 0 point here. Now 400 मतलब 4 का टेबल, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 तो 408 ज़ा 3200, पीछे 2 0 लगा देंगे। रिमाइंडर इज 90, 4 2 ज़ा 8, 402 ज़ा 800, रिमाइंडर 100, 402 ज़ा अगेन 800, रिमाइंडर 200, 405 ज़ा 2000, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर वी गॉट 0 बिकॉज 400 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 and 5 ही होंगे, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पर वी गॉट टर्मिनेटिंग आंसर because 329/400 is equals to
0.8225. Okay. Now the next question is, you know that 1 upon 7 is equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? So सेकेंड का क्वेश्चन में हमारे पास 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.142857 बार. हमें फाइंड आउट करना है 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 एंड 6 by 7 विदाउट डिविजन. सो हम क्या करेंगे, ये 2 by 7 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 by 7. ओके, 2 मल्टीप्लाई 1 by 7 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 by 7 की वैल्यू 0.142857 इसके ऊपर बार. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2. ओके, एंड देन 2 0 0 0.285714 हमें आंसर मिलेगा और उसके ऊपर बार बना देंगे. ओके, सो ये सिंपल प्रोसेस होगा जिसमें हम डिवीजन किए बिना डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रैक्शन का. ओके, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके. अब सिमिलरली सेम लॉजिक सबके लिए यूज़ होगा. 3 by 7 के लिए विल राइट 3 मल्टीप्लाई बाई 1 by 7. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 by 7 की वैल्यू 0.142857. सो बार 3 7 जा 21 है ना, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया. 3 7 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 7 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 5 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12 2 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4. So 0.428571 bar we will get. Next we have to do 4 upon 7. 4 multiplied by 1 by 7 is equals to 4 multiplied by 0.142857 bar. 4 7s are 28, 8 to carry. 4 5s are 20 plus 2, 22 to carry. 4 8s are 32 plus 2, 34, 4 3 carry. 4 2s are 8 plus 3, 11 1 1 carry. 4 4 16 plus 1 17 7 1 carry. 4 1 4 plus 1 5. 0.571428 bar. Next we have to find out the value of 5 by 7. 5 multiplied by 1 by 7. 5 multiplied by 0.142857. 5 7 35. 5 3 carry. 5 5 25 plus 28. 2 3. 5 8 za 40 plus 2 42. 2 4 carry. 4 5 2 za 10 plus 4 14. 4 1 carry. 5 4 za 20 plus 1 21. 1 2 carry. 5 5 plus 2 7. 0.714285. Next we have to do the last one, 6 upon 7, that is 6 multiplied by 1 by 7 is equal to 6 multiplied by 0.142857 bar. 6 7s are 42, 2 4 carry. 6 5s are 30 plus 4 34, 4 3 carry. 6 8s are 48 51 1 5 carry. 6 to the 12 plus 5 17 7 1 carry. 6 4 to 24 plus 1 25 25 2 carry. 6 plus 2 8. 0.857142 is this answer. So we got all the values without actually doing the long division process. The next question is, express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So we are given some rational numbers in the decimal form 0.6 bar, which is non terminating recurring, and हमें इसे P upon Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So इसका प्रोसेस देखो क्या करना है. सबसे पहले ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है उसे हम x अज्यूम करेंगे, यानी कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार है, यानी कि 666 रिपीट होता रहेगा यहाँ पे. अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है. दैट इज ओनली अ सिंगल डिजिट इज रीअकरिंग, दैट इज 6. सो अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डबल डिजिट रिपीट होता है, लेट से 62 62 62, तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे. 3 डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 1000 एंड सो ऑन. सो यूर विल राइट मल्टीप्लाइंग 10 on both sides. So we will get 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.666 and so on. Here we get 10 multiplied by x 10x and 10 multiplied by 0.666. Your point will move on one time on the right side. Here we will get 6.666. Next step is subtracting x from both sides. सो ये दो स्टेप को आपको ध्यान देना है. एक तो मल्टीप्लाइंग वाला स्टेप और यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग वाला स्टेप. ये स्टेप कांस्टेंट होगा हर बार. x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे x सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ से. 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट. बट यहाँ पर x के जगह पर हम x की जो वैल्यू है वो रख देंगे सीधा सीधा. x की वैल्यू हमारी है 0.666 एंड सो ऑन. और यहाँ पे रीजन बता देंगे बिकॉज x की जगह पर हमने यहाँ पे 0.6666 वाली जो वैल्यू है वो रख दी. ये सब सॉल्व करेंगे.
10x माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और 6.6666 माइनस 0.666 करोगे अगर आप, तो देखो लॉजिकली यहाँ पे 6.666 एंड सो ऑन में से अगर आप 0.666 एंड सो ऑन माइनस करोगे, हर डिजिट इन्फिनिटी तक 6 ही है, तो 6 माइनस 6 6 माइनस 6 एवरीथिंग विल कैंसल आउट टू 0, सब कुछ 0, यहाँ पे सिर्फ 6 माइनस 0 यू विल गेट 6, so you will get the value here 6. Now to find out the value of x, 9 will go for division, you will get 6 is x is equal to 6 upon 9. Then यहाँ पे ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, इनमें कॉमन फैक्टर्स है 3, so 3 से कट करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, and hence we got the final answer as x is equals to 2 upon 3, which is the p upon q form. Now the second question is 0.47 bar. तो पहला स्टेप तो ये है कि हम इसे x अज्यूम करेंगे, let x is equal to 0.4777 डॉट डॉट डॉट, you can see that कि यहाँ पर बार सिर्फ 7 के ऊपर है, that means only 7 is going to repeat, not 4. Okay, so only single digit is repeating, so again we will multiply 10 on both the sides, multiplying 10 on both sides. So here we get 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.4777 and so on. Here we get 10 multiplied by x, 10x is equal to 0.477 into 10 means point will move one time on right side. Here we will get 4.777 and so on. Next step तो यहाँ पे subtraction वाला step constant है, subtracting x from both sides. So here we get 10x minus x is equal to 4.777 minus x, but x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो 0.4777 and so on. यहाँ पे लिख दो कि x is equal to 0.477 वाली वैल्यू हमने रख दी है. So 10x minus x will become 9x and 4.777 minus 0.477, यहाँ पे हम रफ में करते हैं इसे 4.777 minus 0.4777. So every 7 minus 7 will become 0. बट यहाँ पे डेसिमल के बाद ये जो है 7 है, यहाँ पे 4 है, 7 minus 4 will get 3 and 4 minus 0 4. So here we got 4.3. This side we got 4.3. Now x is equals to 9 will go that side, 4.3 divided by 9, 4.3 upon 9. ये हमें p upon q तो फॉर्म मिल गया, बट यहाँ पे p जो है वो इंटीजर नहीं है, यहाँ पे पॉइंट होने की वजह से, तो ये पॉइंट को रिमूव करेंगे, सो ये हो जाएगा 43, और पॉइंट के बाद यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है, मतलब 9 के पीछे लगाना होगा 0, और ये हो गया 43 अपॉन 90, जो कि को प्राइम नंबर्स है, इनमें कुछ कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है. और थर्ड क्वेश्चन अब है 0.001 बार. सो अगेन यहाँ पर अज्यूम करें लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन. ओके, बिकॉज वी कैन सी दैट यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है 001, दैट मीन्स ये 3 डिजिट हर बार रिपीट हो गए. सो यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? येस, यू आर राइट, मल्टीप्लाइंग 1000 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 zeros लगेंगे. सो हियर वी गेट 1000 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 001 001 and so on. Here we get 1000 multiply x, 1000x is equals to 1000 multiply by this. 1000 में 3 zeros है, 1000 में 3 zeros है, so 0.3 times right side पे move होगा, 3 times. So 1 2 3. So here will come the point. So ये आगे के 3 zeros remove हो जाएंगे. So we will get 1.001 001 001 and so on. Now let us subtract. Therefore 1000x minus x is equals to 1.001 minus the value of x is 0.001 because x is equal to 0.001 001 001 and so on. So 1000x minus x, 1000 में से एक गया तो 999 बचा, x is equals to यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1.001 001 001 and so on minus 0.001 001 001 and so on. So 1 minus 1 0 0 minus 0 0, ये सब कुछ कट हो जाएगा आफ्टर डेसिमल. यहाँ पे बचेगा 1 minus 0 1, so we will have left with 1. So here we will get x is equals to 1 upon 999, which is the p upon q form of 0.001 bar. Now the fourth question is express 0.99999 and so on in the form p by q. Are you surprised by your answer? Let us see if we get surprised or not. So यहाँ पर let x is equals to the value is 0.999 and so on. एक ही डिजिट रिपीट हो रहा तो विल मल्टीप्लाई 10 both sides. 10 multiplied by x, 10 multiplied by 0.99, 10x 9.99.
subtracting x, value of x is, so because your reason is x is equals to 0.9x is equals to 9, every 9 will get cancelled, so we will have only 9. X is equals to 9 upon 9, and we get x is equals to 9 upon 9 means 1. We got the answer 1. So that is why they are saying how we got 1. Here the value is 0.999 and the p by q form we got 1. So yes, we got this 1 because 0.9999999 till infinity is almost equivalent to 1. Okay, that is why we got the value as 1. Round figure answer we get 1. Okay. The fifth question is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. So let us divide here 1 by 17. To make it easy, we will first write the table of 17 in the rough side. Okay, let us start the division now. So 1 is smaller than 17, so here 0 point and I'll put a 0 here, but still 10 is smaller than 17. So again one more 0 and here one more 0. So 100 से पहले है 85, 5 is 85, remainder 15. 0, 150 से पहले है 136, 8 is 136, remainder 14. 0, 140 से पहले है 136 again, 8 is 136, 4 remainder 0. 40 से पहले है 2 is 34, 6 remainder 0. 60 से पहले है 51, 3 is 51, 9 remainder. 90 से पहले 85, 5 is 85, 15, 150 35. रिमेंबर कि हमें स्टॉप कब होना है? हमें स्टॉप तब होना है जब हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. अगर 1 आ जाए तो वी हैव टू स्टॉप. सो 50 से पहले अगेन 2 is 34, 16 रिमाइंडर 0, 153, 9 is 153, रिमाइंडर 7, 0, 4 is 68, 0, 1 is 17, 3, 0, 1 is 17, 13, 0, 130 से पहले 7 is 1, 1 and 9, 11, 0. Continuing here, 110 से पहले 6 is 102, so 8 is left. 0, 17, 4 is 68, 12 left. 0, 17, 7 is 119 and here we got the remainder 1. Here we got the remainder 1. मतलब वापस से ये पूरा पैटर्न रिपीट होगा. So here we got the value of 17 as 0.058823529411744647 और ये 0 से लेके ये 7 तक हम बार बना देंगे. ओके, नाउ हम यहाँ पे क्वेश्चन था कि मैक्सिमम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. सो इफ़ वी काउंट पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकरिंग डिजिट्स आर 16 डिजिट्स रिकर हो गए. ओके, दैट इज के डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उससे कम ही रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए. दैट मीन्स कि यहाँ पे 17 था डिनोमिनेटर, तो 17 से कम यानी कि 16 डिजिट्स रिकर हो गए मैक्सिमम. लेट अस से अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो उसमें रिपीट होगा दैट विल बी 6. Question number 6 is, look at several examples of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers, q is not equal to 0, with no common factors other than 1, and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? So इसका आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझ लिया था कि जब हमारे पास p upon q का फॉर्मेट दिया था एंड वी फाउंड द डेसिमल फॉर्म, वो टर्मिनेटिंग कब आ रहे थे आंसर? जब हमारी q यानी कि डिनोमिनेटर में 2 या फिर 5 या फिर 2 and 5 दोनों के कॉम्बिनेशन का प्राइम फैक्टराइजेशन हो तब. दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में कि p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0, integers and q is not equal to 0, will have terminating
डेसिमल एक्सपांशन इफ q इज इक्वल्स टू क्या होगा 2m into 5n where m and n are whole numbers, राइट? मतलब कि 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तभी ही उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा. ओके. सेवेंथ क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ओके, 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो. सो कुछ भी लिख दो 0.39413264 डॉट डॉट डॉट. ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है. कुछ भी नंबर लिख दो रैंडमली. ओके, सेकंड है लेट्स से 4.631239 डॉट डॉट डॉट. थर्ड, अब ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं जैसे कि ये है 0.10101000100001. ऐसे नंबर को भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहा जाता है. भले यहाँ पे 1 और 0 ही है, बट 0 जो है वो एक एक इंक्रीज होता जा रहा है आफ्टर 1, है ना. यहाँ पे सिंगल 0, यहाँ पे डबल, ट्रिपल, चौपल एंड सो ऑन. ऐसे नंबर को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं. अब 8th क्वेश्चन है कि फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. सो यहाँ पे 5/7 है और एक 9/11 है. पहले हम इनका डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे. तो लेट अस डिवाइड 5 by 7. Here we get 0.077 49, remainder 1, 0, 7 1 7, remainder 3, 0, 7 4 28, remainder 2, 0, 2 14. By the way हमने पहले वैल्यू निकाला है. 20 minus 14 we get 6, 0, 7 8 56, remainder 4, 0, 7 5 35, remainder 5. remainder 5 बचेगा, मतलब वापस से सेम रिपीट होगा. 7 1 4 2 8 5. We got 5/7 is equal to 0.714285. Similarly, we will find out the value of 9/11. So let us do 9/11. 0.0, 11 8 88, remainder 2, 0, 11 1 11, remainder 9. Again we got remainder 9, means here we are going to get 9/11 is equal to 0.81 bar. Here 71485 bar. Okay, ये दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं इनके बीच में. सो हम लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर. पहला तो ये 0.71, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स देखो 71 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है 81. तो हमें 71 और 81 के बीच में से कोई भी नंबर पिकअप कर लेना है एंड रैंडमली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बना देना है. यानी कि लेट्स से मैंने लिख लिया 0.75 जो 71 और 81 के बीच में, एंड देन 3 9 4 2 1 एंड सो ऑन. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट मीन्स इरेशनल नंबर है. 0.76 766 766 एंड सो ऑन. 0.8049326 and so on. So these are 3 irrational number between 5/7 and 9/11. So now exercise का last question है, classify the following numbers as rational or irrational. जिसमें first value है √23, where रूट के अंदर 23 जो प्राइम नंबर है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, so it is a irrational number. Whereas यहाँ पे है √25, but √225 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, it is 15 का परफेक्ट स्क्वायर है. So √225 will get 15 जो कि एक रेशनल नंबर है, so we will get it rational. 0.3796, it is terminating and hence rational. 7.478 reoccur होता रहेगा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, सो ये भी रैशनल है. फिफ्थ क्वेश्चन इज 0.101 001 0001 00001 एंड सो ऑन. यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है एंड दैट इज वाई ये एक इरेशनल नंबर है एंड hence we completed this exercise. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में where we will see the next exercise. Bye. Take care.